Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining us for this particular meeting today. Talk shop for Faiza Tasneem. We have a very interesting guest today online with us. Since this is a live unedited streaming on Facebook too, so I will request all of you who are watching us to be kind to us when you're leaving your feedback on Facebook. For the sake of everyone, we are going to keep this particular conversation bilingual. We'll be talking in English as well as in Urdu to reach more people and make it as interesting as possible for you to know the journey of this talented lady, Mehreen Umar. For those who know her, Mehreen is known to her family, colleagues, and friends as a person who is a hardworking, compassionate, brainy, yet with a very easy smile. And behind this easy smile, there is a whole process of struggles and successes. So let's find out from Mehreen today how her journey has been so far. Mehreen, over to you. Please let us know what do you do professionally to start off? Okay. Assalamu alaikum, Faiza. Thank you so much for inviting me for your venture. और करती क्या हूँ मैं currently I'm working as a compliance officer in a vocational educational institute है Australia में. It's called Baxter Institute. So I'm working in their compliance team as a compliance officer. Right. And before you went to Australia, you were working in Pakistan. So we will start off with your childhood. Tell us something about your childhood. How has it been? अच्छा, चाइल्डहुड मेरा वैसे जहां तक मुझे याद है बहुत अच्छा गुजरा है। मैं एक ही एक बहन, मेरे 2 बड़े भाई हैं माशाल्लाह से। सो थोड़ा बहुत उनकी तरफ से लाइक वो दोनों आपस में खेलते थे, तो मैं अकेली होती थी। तो मैं यूजुअली जो अम्मी वगैरह सब लोग बताते, मैं कोने में ही बैठी रहती थी, गुड़िया से खेल लिया या चुप करके बैठी रही या अम्मी को शेडो कर लिया, बस इससे ज्यादा नहीं। या भाइयों को खेलते देख लिया, उनकी बॉल गिर गई या वो पकड़ा दी एंड ऑल। लेकिन चाइल्डहुड ऑन एज अ होल बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था। मुझे भलोनी कहते थे छोटे होते, क्योंकि मैं काफी मोटी सी थी, चीक्स मोटे सारे थे। तो अच्छा था, चाइल्डहुड की अच्छी मेमोरीज है। So how was your college time in Pakistan? You studied in Pakistan as well as you did 1 degree from Australia too. So Yes. Pakistan So का educational journey कैसा रहा? पाकिस्तान में schooling was basically from Cathedral High School, which is on Hall Road and Mall Road, Cathedral 1. वहाँ पे it was a co-ed, so I did my matriculation from there. लेकिन since इतने इम्तियाजी नंबर नहीं आए थे मेरे, 600 something आए। Just like everybody else. Yeah, इतनी को मैं like नहीं थी, so I ended up in the College of Home Economics. Right. Okay. तो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में मैंने फिर बैचलर्स किया, मास्टर्स इन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट किया वहां से। और उसके बाद इतना कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जॉब करूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हमारी फैमिली में भी इतना कोई खास नहीं था, और जिस जमाने से मैं हूँ ना, इतनी ज्यादा जॉब नहीं थी बेसिकली। बेसिकली लड़कियों का नहीं था, इतना रवाज नहीं था काफी। हाँ, इतना रवाज नहीं था। और बेसिकली जो मोस्ट कॉमन प्रोफेशन थे ना लड़कियों के, वो एज अ टीचर बन जाए। तो वो टीचर यूज्ड टू साउंड इतना कोई अच्छा नहीं लगता था, जैसे पता नहीं क्या, लाइक इट्स माय ओन ओपिनियन सी। सो कॉलेज स्टडीज में मास्टर्स लेवल तक तो कभी सोचा नहीं था। जस्ट लाइक एवरी अदर सिंगल नॉर्मल पाकिस्तानी गर्ल, मुझे बस शादी कराने का बहुत शौक था। क्योंकि लड़कियों के फोटो शूट की वो एल्बम्स आ जाती थी और हम I think a lot of people can relate to this particular feeling of, just getting a BA degree. यानी कि कोई सेंस ही नहीं ना, लाइक फाइजा देयर वाजंट एनी सेंस एट ऑल। बस सिर्फ ये था, ये कपड़े पहनने और ये फोटोशूट वाली ये जो मोटी एल्बम होती है ना, और वो जो एल्बम में तस्वीर जला के और वो धागों से डिजाइन बनाए जी, और ये है और ये ऐसी, बस ये चीज थी। यानी कि इतना ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल
एस्पेक्ट को देखा ही नहीं था। और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, मैं ये डिमीन नहीं कर रही अपने कॉलेज को, नॉट एट ऑल, मैं लाइक आई लव माय कॉलेज, लेकिन उसमें ज्यादा घरेलू घरेलू, और वो फिर जिसको आंटी को सुनाओ माशाल्लाह जी सिलाई कढ़ाई आती है, आपको ये आता है वो आता है, तो इट वाज मोर लाइक आपको उस मोल्ड में डाल दिया गया। तो आई नेवर थॉट कि मैं कभी जॉब करूंगी, कभी सोचा भी नहीं था। So how did you find your first job? How did you land your first job? Probably it was in Pakistan? यस, इट वाज इन पाकिस्तान। और बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट है, मैं बस बैठी अखबार देख रही थी, और अखबार में ना हाफ पेज का एक एड आया हुआ था कि हम कुछ डिफरेंट, पता नहीं यार, इट वाज अ वेरी कैची एड, डू यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड डिस्कवरी सेंटर। Right. अच्छा, नाम से ऐसे लगता था डिस्कवरी सेंटर, उस जमाने में तो एक चैनल ही होता था Right. एनिमल्स वाला, I know. डिस्कवरी चैनल। सो Hmm. आई समहाउ रिलेटेड डिस्कवरी चैनल विद डिस्कवरी सेंटर, Right. मुझे नहीं पता। Right. बट एनीवेज मैं गई वहां पे, इंटरव्यू दिया, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था इंटरव्यू का, लेकिन हाँ जो उन्होंने बातें पूछी आई वाज वेरी लाइक, मैं कॉन्फिडेंट बहुत थी। अब भी हूँ लेकिन तब भी थी, लाइक मैं थी नॉर्मल सा, लाइक एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि यूजुअली हम लोग, आई डोंट नो, मोस्टली लोग कॉन्फिडेंट को दे टेक इट, जितना आप रूड होगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं। आई डोंट नो हाउ I agree with you. I agree. यू एग्री। हाँ, तुम आपको समझ आ ये रही है ना थोड़ा मेरी सा बात? वो था जो, हाँ, और यू थोड़ा सा ठुस लेटली ठुस लोगों ठुस का करते परस्पेक्टिव जाएंगे। ऐसा कि अगर आप यू आर बोल्ड एंड ब्लंट तो शायद आप सिर्फ वही ओहो, कॉन्फिडेंस का वो डेफिनेशन रह गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो वाली नहीं थी। लेट मी क्लियर दिस आउट, लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे पता था कि अगर मुझे कोई कहेगा जी होम इकोनॉमिक्स के पढ़े आपने क्या पढ़ा है, लाइक आई यूज्ड टू लाइक डिफेंड माय एजुकेशन, और वो लाइक आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई रेड डन। कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अच्छी बुरी लोग कहें, लेकिन मुझे है कि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सो इट्स क्वाइट प्रेशियस टू मी, आई वैल्यू इट, ठीक है। तो वो बस इंटरव्यू में समहाउ पता चला कि वो बीकन हाउस का प्रोजेक्ट था, डिस्कवरी सेंटर स्मार्ट स्कूल, Right. उन्होंने गुलबर्ग में खोला था। तो इट वाज मोर अबाउट लाइक robotics and everything, and they were like introducing computers। उस जमाने में बहुत न्यू चीज थी ये। तो उधर फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था एज अ टीचर, लेकिन उन्होंने ना टीचर का नाम था असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट। Right. That's very nice. कमाल। That's very हाँ, nice. That's absolutely nice. दैट वाज वेरी नाइस, लेकिन टीचर एज अ टीचर रोल नहीं था खाली उसमें, वी वर डेवलपिंग करिकुलम एज वेल, Right. So through your जिसमें जी आपने sorry. Yes, yes. Go ahead. हाँ, यानी कि वो टीचर है लेकिन बट यू वर डेवलपिंग करिकुलम जिसमें आपने आईटी को इंटीग्रेट करना है, Right. लाइक So इंग्लिश पढ़ानी है तो कैसे, और ये दिस समथिंग so लाइक दिस। most of your career background and professional expertise lie between educational IT related initiatives. So I'm hoping कि पाकिस्तान में भी आप ये इन पे काम करती रही, और अब जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है अभी करंटली, उसमें भी आपका यही रोल है। हाँ, मैं मजे की बात दैट क्योंकि कल जब हमने अपलोड किया तो मेरे पास लिंक्डइन पे 2-3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, और मुझे फेसबुक में मैसेंजर पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि पेंडेमिक के सिनारियो में, हालांकि मैं कोरोना की बात ही करना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये आपकी एक्सपर्टीज पूछ रही हूँ कि पेंडेमिक के टाइम में आपका, चूँकि पाकिस्तान में भी बड़े ब्रांड्स के साथ एजुकेशन की फील्ड में IT रिलेटेड करिकुलम डिज़ाइनिंग रिलेटेड रोल रहा है, टीचर ट्रेनिंग में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, और अब आपका एक बिल्कुल फ़र्क कंट्री के अंदर एक्सपोजर है, वहाँ से आपने स्टडी भी किया, ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज भी ली हैं, और आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त काम कर रही हो। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो करंट पाकिस्तानी, आप क्योंकि यहाँ से भी देख चुकी हैं और आप ऑस्ट्रेलिया का भी मैनेज कर रही देख रहे हैं एक्सपीरियंसेस, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन, जिसको ऑनलाइन अब हम वर्चुअल एजुकेशन दे रहे हैं, कितनी हेल्पफुल और सूटेबल रह सकती है? अच्छा, इसमें ना अब हम ऑब्वियसली, क्योंकि पेंडेमिक है तो आप फिजिकली डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे तो
पूरा उन्होंने कॉलेजेस बंद एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी हो गया हुआ है। और अब तो मैं सुन रही हूँ कि बच्चे भी जूम क्लासेस और इस तरह का काफी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि अब क्योंकि मैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्टिफिकेट 3 इन इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में दे हैव टू डू समथिंग लाइक प्रैक्टिकल वर्क भी काफी ज्यादा है, लाइक सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट हम उनको देते हैं जिसमें उन्होंने वो वेल्ड लगाना है या वो टायर ठीक करना है, व्हाटएवर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप सारी चीजें ऑनलाइन नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने ये किया है, जो यूनिट्स जो उनके कोर्स के यूनिट्स हैं उनमें से जो जिनमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है उनको हमने जरा पहले कर लिया और उनको ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी हमारा पहले था पेपर बेस्ड, लाइक पेपर रिटर्न असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। पेंडेमिक, बिफोर कोरोना। हाँ, बिफोर दिस पेंडेमिक। तो ये एकदम फिर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अब वो भी अच्छा, मजे की बात मैं भी अब लर्न कर रही हूँ। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मूडल, जो ऑनलाइन आप क्विजेज लर्निंग और वो मैनेजमेंट सारे, सिस्टम है, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो बनाते हो। तो वो अब आजकल जैसे करिकुलम का अगर मैं कोई रिटर्न टेस्ट, क्योंकि आई वर्क ऑन असेसमेंट्स बेसिकली, राइट। तो अगर मैं किसी यूनिट की असेसमेंट बना रही हूँ विच इज अ रिटर्न टेस्ट, तो वो रिटर्न टेस्ट पे मैंने मूडल पे बना रहे हैं, बट इट शुड बी इंटरेक्टिव इनफ कि वो स्टूडेंट को प्रिंट ना करना पड़े, दे हैव टू डू इट ऑनलाइन। और वो फिर ऐसी चीजों के जो असेसर, जो ट्रेनर, जो टीचर ने चेक करना है उसके लिए भी इजी हो। राइट। So it's like it's ever changing, बिल्कुल ही change हो गया, but we are learning like every day. I'm if I make a quiz, तो वो टीम है obviously, वो फिर आप you are connected, तो they tell you कि इस तरह tweak करना है, इस तरह करना है, ये कोड डाले और ये ना डाले। तो हाँ, क्यों सब कुछ नहीं आप ऑनलाइन कर सकते, ये तो एक है बात। Like everybody in every field that we are now listening to all these webinars, all these discussions online, there are all of the view that there are few things that you can do online properly, but not everything can be shifted to हाँ, online properly. There has to be a hybrid style of learning and doing things. So I'm sure कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो लोग हैं वो इस चीज़ की तरफ आ जाएंगे कि हाइब्रिड टीम्स भी सक्सेसफुली ऑपरेट करने लग जाएंगी। मेहरीन, कल हमें एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था जो जो इसी से रिलेटेड है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वाज इम्पोर्टेंट बिफोर इवन कोरोना टाइम, और आपको आपकी अपनी एक्सपर्टीज जो आप ऑस्ट्रेलिया में देख रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपका अपना ओपिनियन क्या है कि एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का फ्यूचरिस्टिक रोल अब क्या नजर आता है आपको? अच्छा, अब इसमें ये है कि फॉर स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स में तो even before this pandemic, like I think class 5, year 5 में जब बच्चा जाता है ना, they ask, even in public schools की बात कर रही हूँ, वो दे उनकी जो बुक लिस्ट में आता है ना, उसकी बुक लिस्ट में होता है get you have to buy an iPad for them, क्योंकि टीचर्स ने ऑनलाइन एक्टिविटीज करनी है। So Right. every Okay. it's compulsory, but having said that, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर स्कूल गवर्नमेंट को बताता है, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताते हैं, और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल को डिवाइसेस दे देंगे दैट कैन बी यूज्ड बाय दोस चिल्ड्रन, या उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कुछ और करेंगे। लेकिन मोस्टली जेनेरिक, यू हैव टू बाय एन आईपैड। फिर जो बड़ी क्लासेस में आते हैं, ईयर 9, ईयर 8 में, क्योंकि वो स्पेक्स बताते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक स्पेक्स होते हैं ना डिवाइस के, दे से कि ये होना चाहिए, लाइक आप पुराना नहीं उठा के घर का दे सकते। Right. फिर अब उन्होंने, जैसे माय सन ही इज इन ईयर 10 नाउ, Right. तो लास्ट ईयर दे आस्क्ड के लैपटॉप होना चाहिए, so we had to get him a laptop as well, so they If take the somebody laptop. doesn't afford, जैसे पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप्स मिल जाते हैं, just like I think there is something over there as well that government facilitate भी करती है, loans भी देती है to buy these things, so the learning remains an ongoing process.
यस। सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे तो पहले भी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज था, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे जो होमवर्क करते हैं, अब माय सन इज इन हाई स्कूल, तो वो तो ऑनलाइन ही उसकी सबमिशन होती है असाइनमेंट्स की। मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स जो ओवर द वीकेंड मिलती हैं, देयर असाइनमेंट्स आर सबमिटेड ऑनलाइन, जो कि पहले ही हो रहा था। अब बस ये फर्क आया था कि व्हेन दे वर स्टडिंग फ्रॉम होम तो वो टीचर्स जूम कॉन्फ्रेंसेस और उस तरह कर रहे थे। right. लेकिन So learning is going on, and this pandemic has done, if it has done something, I think it has made people think there are so many other ways to do things successfully. Of course, some things can be done online successfully, and there are others which cannot be. उनके लिए field work चाहिए, field experience चाहिए. So we will see how things evolve. अब आपने जो teaching का जिक्र किया, तो I'll ask you more. When you were a child, were there any mentors? या आपने जब जॉब स्टार्ट करी या जो भी आपका प्रोफेशनल करियर रहा, were there any mentors who helped shape your career or help shape your skills? Would you like to फाइजा, remember them and say thank you through this particular platform that you have? हाँ हाँ जरूर। असल में मेंटोर्स ऐसा लाइक डायरेक्ट तो नहीं कि उन्होंने अपने विंग्स के नीचे लिया हो, लेकिन जहाँ पे भी मैंने जॉब किया, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम पीपल। लाइक चुप करके मैं आपको भी बड़ा देखा हुआ है चुप करके एंड देन आई ट्राई कि इस बंदे की जो ये पॉजिटिव चीज है ना, ये तो जरूर आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। मुझे अपना ना, लोगों से ज्यादा मुझे अपनी पर्सनैलिटी या अपने आप को इक्विप करना या अपने स्किल्स को इन्हांस करने का ज्यादा शौक है। कि अगर मैं किसी का देखूंगी ना कि ओ इसमें ये काम इसको आता है, एक्सेल फॉर एग्जांपल, एक्सेल शीट। अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक्सेल पे एक लड़की बड़ा जबरदस्त काम करती थी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने सीखना ही सीखना है, ये तो कमाल चीज करती है ये। यानी कि तो मेंटोर्स तो हाँ एज सच डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन दूर से या जिनके अंडर मैंने काम किया हुआ है। मैंने जब पब्लिक सेक्टर में मैंने काम किया था, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, इट वाज अ टीचर्स, इट इज नाउ, लेकिन उस जमाने में जरा पढ़ा लिखा पंजाब आया हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के भी लोग रखे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंड ऑल। वहां पे मैंने बहुत लर्न किया, क्योंकि वहां पे बल्कि होम इकोनॉमिक्स, वहां की जो डायरेक्टर थी वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की ही हमारी प्रोफेसर थी, डॉक्टर रुखसाना ज़िया। उनके साथ काम करके मैंने बड़ा सीखा है। लाइक छोटी छोटी चीजें, जैसे वो लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स और इस तरह की एडिटिंग में चीजें, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क ऑन द न्यूज़लेटर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो छोटी छोटी चीजें, कॉमा और हिस्टेरिक्स और इस तरह की चीजें, लाइक शी यूज्ड टू डू दैट, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ये ऐसी पेंसिल लेके कितना अच्छा ये लाइक कंसंट्रेट करके करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। समटाइम्स आप पढ़ रहे हो तो आप स्किप करते हो ना चीजों को, तो वो बड़ा मैंने उनसे अच्छा सीखा था कि ये। फिर सिटी स्कूल में मिस सारा, उनके साथ बड़ा मजा आया, मैंने बड़ा कुछ सीखा है उनसे। बहुत लाइक बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत ट्रैवल भी किया पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट टीम्स के साथ। हाँ, ओ वो वही जो टीसीएस में इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में आई वर्क देयर, तो वहाँ तो कुछ और ही था। लाइक इवन माय कोलीग्स नादिया, हुमा, मिस फौजिया बांडे, लाइक आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम। और मैं कहती हूँ कि आप समझते हो ना, आप ही पता नहीं क्या बड़ी चीज हो, और आप बड़ी पता नहीं क्या आप अपने आप को समझते हो मजलूम हैं और हम ही हैं, वी आर द हीरोज। नहीं, मैंने इन लोगों, जितनी मैंने लोगों के साथ काम किया ना, मैंने इतना देखा है कि लाइक दे आर लाइक कुछ और ही चीजें, कुछ और ही लेवल के हैं। यू लर्न सो मच फ्रॉम देम, लाइक आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम। और मजा भी बड़ा आया, हमने तो मजा भी बड़ा किया हुआ है। Absolutely, they're extremely nice people, and I'm sure you have made very fond memories during all the travels you have done. You have done travel within Pakistan, many cities, and you have done international travel. So, in your opinion, travel करने से इंसान को क्या मिलता है? What is in it that people spend such a fortune in traveling?
Why do the people feel compelled to do that? What is your experience? फायदा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, आई बिलीव मेरा मेरा जो अपना हम्बल ओपिनियन है, इंसान का दिमाग खुल जाता है। Right, different लाइक culture आप or जब मैं आपको बताती हूँ, जब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का बाद में बताती हूँ, क्योंकि पहले मैं 2008 में मैं जो स्कॉलरशिप पे मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी अपने मास्टर्स के लिए, जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मुझे तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं मैं कौन सी माचिस की डब्बिया में रहती थी, ये तो दुनिया ही कुछ और है। हम तो अपने आप में से निकले। लाइक यू गो आउट एंड यू सी, लोगों को देखें आप, उनके खाने, कल्चर, एवरीथिंग, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी है कि आप तो हैरान, एकदम माइंड ब्लो अप हो जाता है कि हम कौन सी अपनी छोटी सी एक दुनिया में रह रहे हैं, और दुनिया में, और हम ही अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं कितने अच्छे मुसलमान और कितने अच्छे लोग हैं। ओहो, आप बाहर तो निकले हैं, आपका तो दिमाग खुल बिल्कुल जाएगा सही कि कह रहे हैं आप लोग। कि ट्रैवल करने से एक बहुत बड़ी चीज जो आपके यहाँ चेंज होती है वो है आपका परसेप्शन। और जो हाँ, हमारा आज खाली का लैंडमार्क्स टॉपिक है, नहीं है, लाइक इट। हाँ, बिल्कुल आपका लैंडमार्क तो में वही नहीं कि परसेप्शन। कल्चर है, आपके डिफरेंट लोगों के मजहब को आप स्टडी करते हैं, उनके फूड कुजीन को देखते हैं। और एक बहुत बड़ी मजे की बात जो मैंने भी नोटिस किया, शायद आपने भी अपने एक्सपीरियंस में नोटिस की होगी, कि बहुत से पाकिस्तानी डिफरेंट कंट्रीज में जाके द मिनट दे लैंड ऑन द एयरपोर्ट्स, वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत क्लियरली फॉलो करते हैं विदाउट एनीबडी टेलिंग देम कि उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। There is something in the atmosphere in another foreign land that all of us who do not abide by much laws in Pakistan, we tend to do that automatically. और चूंकि जो हमारी आज की टॉपिक है उसमें ये है कि जो परसेप्शन है, आप भी शायद इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं कि जब इंसान की परसेप्शन इंप्रूव होती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट हो जाता है ना। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, आपने भी किया होगा कि जब हमारी परसेप्शन, हमारी लर्निंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है, हमें समझ आती है, हमारे में मेच्योरिटी आती है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। सो टेल अस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी यू हैव हैड as professional as well as personal level. What do you think? Do you think you are the same person who was probably 10 years back? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। असल में मुझे मुझे मेरे पे जो इम्पैक्ट हुआ है इस सारी चीज़ का, लाइक वर्किंग इन पाकिस्तान और फिर यहाँ पे आके पढ़ के फिर वापस जाके, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे, मैं ये नहीं कि तारीफ है या जो भी है, यहाँ पे परसेप्शन, आपका दिमाग एक तो खुलता है और यू फाइंड आउट कि हम जो छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे हुए हैं ना, कि कपड़े नोटिस करना, और बड़ा आपने इंग्लिश बोलेंगे तो आपको जॉब मिल रही है तो पाकिस्तान में ये जी, आपने ओह! बहुत और बहुत विद अच्छी बात एक्सेंट की है। ना हो तो बात ही खत्म है ना। हाँ, अगर आप बाहर से आ गए गलती से, बाहर से पढ़ के, तो दे एक्सपेक्ट यू कि पता नहीं आप कौन से मैगज़ीन में से निकलेंगी पैंट शर्ट पहन के, और क्या आपका एक्सेंट होगा। सो true. This is one of the things सो that we all have to सो deal with. Yes. हाँ, इसमें इसमें ये था कि मैं बहुत ग्राउंडेड हो गई हूँ फ़ाइज़ा, मैं इतनी ज़्यादा ग्राउंडेड हो गई हूँ, और मैंने जितने लोगों के साथ, इवन अब मेरी जो कोलीग्स हैं, जो पहले जिनके साथ काम किया था, मैं उनको देख के, मैं उनको, हम समझते हैं ना, हम वी आर द वन्स जिनकी कोई बैक स्टोरी है, और हमारा ही कुछ है कि डार्क पैच है। हमने बड़ा, नहीं, यहाँ पे इतने लोग हैं, लाइक एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन स्टोरी, और यहाँ मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैं तो इतना इंस्पायर हुई हूँ कि दे डोंट गिव अप, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। लाइक प्रोफेशनली भी यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड ये फ़र्क है कि यहाँ पे दे डोंट केयर आप कौन-सी फैमिली है, आपके घर में कितने लोग हैं, या आप, दे डोंट बॉदर। हाँ, आपने खुद शेयर करना है, आपकी मर्ज़ी, बट दे डोंट पोक इनटू योर लाइफ, इनटू योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली हाँ, काम पूरा-पूरा है। काम पूरा-पूरा लेंगे, काम आपको करना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ पे दे एथिक्स विल का बहुत क्वेश्चन यू ज़्यादा ऑन योर है। वर्क, हाँ, बिल्कुल। वर्क एथिक्स का। एक्चुअली वर्क एथिक्स वहाँ बहुत है, वहाँ आप अपने सीवी में झूठ नहीं बोल सकते, अपने इंटरव्यूज में झूठ नहीं बोल सकते। तो लाइस का वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे सिफारिशों से और यहाँ झूठ थोड़ा सा बोल के आप चला सकते हैं अपनी गाड़ी को। वहाँ पे अब्रॉड जो है वो ये चीज़ नहीं है। और जब मैं भी यूके गई थी, वहाँ स्टडी की और बहुत अरसा रहा, तो मैंने भी वहाँ पे ये चीज़ नोट की कि जो आपने भी वहाँ परसीव किया होगा ऑस्ट्रेलिया में, कि पीपल आर एक्सट्रीमली सिंपल।
they are not complex. Not many of them you meet are complex. They live a very simple life, or if they can do something for you, they will tell you upfront. Yes, they will put ऑनेस्ट, हाँ, दे आर हाँ, वेरी और ऑनेस्ट, अगर हाँ, अगर नहीं करेंगे तो नहीं वो है तो नहीं। आपको कोई आराम से बोल देंगे, बड़ा पोलाइटली, ऐसा कोई ब्लंट नहीं बोलेंगे, पोलाइटली वो आपको ये भी कह सकते हैं कि हम ये काम आपका ये नहीं करेंगे या आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट जो चीज़ आपने भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में नोट की, जिसका आपने अभी जिक्र किया, कि जैसे जैसे आपने लर्निंग की और लोगों से मिंगल किया, आपने रियलाइज़ किया कि जो लोग मेच्योरिटी में आते जाते हैं या उनकी परसेप्शन इंप्रूव होती जाती है, उनका हम्बलनेस का इंडेक्स हाई होता रहता है। दे ग्रो बहुत, वेरी हाँ, हम्बल इन और वो क्वाइटर होते जाते हैं, मोर ऑब्जर्वर होते जाते हैं। तो आपके इसी से लीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यकीनन इस सारे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में आपकी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज भी थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने और आपने सीखी हैं वो अपने फेलियर से भी सीखी हैं, खाली अपनी सक्सेसेस से भी सीखी, हमने अपने फेलियर से भी सीखी है। कोई ऐसा फेलियर जो आपको आज तक हॉन्ट करता हो, या ऐसा फेलियर जो जिससे आपने लर्न करके बहुत अपना आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इसमें इम्प्रूव किया हो? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया फायजा। फेलियर्स तो बेतहाशा हैं, लेकिन द थिंग इज कि मैंने बहुत अर्ली अपनी लाइफ में, जब मैं अपनी लाइफ की रियल लाइफ में एंटर हो रही थी, मैंने जॉब स्टार्ट की एंड ऑल, तो तभी मैंने रियलाइज आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया था कि फेलियर्स पे ना रोना नहीं है, उनको रिग्रेट नहीं बनाना, क्योंकि अगर वो आपके जहन में अगर इस तरह की नेगेटिव चीजें रहेगी ना, तो यू वोंट हैव प्लेस फॉर पॉजिटिव स्टफ इन योर माइंड। आप फिर फेलियर पे ही फोकस करते हैं। हाँ, सीखो जरूर कि यार ये इस दफा ये गलत किया। मैं ये बड़े मजे का किस्सा है। जब पता नहीं फायजा आपने सुना हो पहले के नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मैं जब 2008-9 में स्कॉलरशिप पे पढ़ के मास्टर्स करके ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस गई ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया मुझे जॉब ढूंढना, जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना। तो वो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, लोग फेक दे वर एक्सपेक्टिंग बड़ा फेक एक्सेंट या कुछ, या पता नहीं मैं क्या हूँ और मैं क्या, भाई मैं जो थी मैं वही थी। एक डिग्री ली थी ना नई, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर लिया था एजुकेशन की, अपनी मास्टर्स डिग्री को, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मैंने काफी स्ट्रगल किया, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही थी। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए घर में, और फिर हर चीज बुरी लगने लग गई। ये लोग यूं क्यों देख रहे हैं, ये यूं क्यों देख रहे हैं, कपड़ों पे कमेंट्स और व्हाटएवर। इसमें ना फंस के रह गई थी। तो अच्छा, मुझे फिर शौक था, मैंने कहा भाई मैंने वापस ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। वहां पे जो मुझे आजादी थी ना, आजादी इन द सेंस ये नहीं कि मैंने क्लबों में जाना था, ये माइंड की आजादी, ये जो हमारे जो सोशल सिस्टम था ना, हमारा जो जजमेंटल सोसाइटी है वो नहीं थे, ओह माय गॉड, नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बचना था ना, तो मेरा एम यही था कि मैंने वापस जाना है। बट सिंस आई वाज ऑन अ स्कॉलरशिप, मैंने बॉन्ड भरा हुआ था। उन्होंने कहा था जी 2 साल से पहले तो आप नहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते वीजा ऑस्ट्रेलिया का, और ये इस तरह की सिचुएशन थी। एनीवेज 2 साल बाद मैंने अप्लाई किया, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। जॉब्स के लिए अप्लाई वहां से बैठ के ऑस्ट्रेलिया के लिए करते थे, नहीं या, और पैसे इतने थे नहीं कि मैं कोई स्टूडेंट वीजे पे आ जाती यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट तो पहले बन के गई थी ना। इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। एनीवेज मैंने पीआर के लिए अप्लाई करना था। पीआर के लिए ना मुझे स्कोर चाहिए था 7 ऑल आइल्स, ठीक है, और वो मेरा आता नहीं था। कभी 7.5 आ जाना तो किसी में। क्योंकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी हाँ, लेकिन बस वो कुछ था, वो कोई चीज थी। ये तो बड़ा जोक था हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जो टीसीएस में मैं काम करती, सारे हंसते थे। हम जाते थे ना इंस्पेक्शन विजिट्स पे, तो रात को मैं आइल्स की तैयारी कर रही होती थी, तो सारे हंसते थे कि छोड़ दो आइल्स की जान। 1 दफा दिया, 2 दफा दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने तो छोड़ना ही नहीं है। आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम माई फेलियर। मैं कहती थी मैंने करना ही करना है। फिर मैंने 7.5 ऑल लेके, ऑल या 3 में लेके, और एक में 7 था। ओ हो, मैं इतनी खुश हुई। यानी मैं ना
गिव अप नहीं करती थी। मेरा ये है कि अगर कहीं फेलियर हो गया ना, मैं मेरी अम्मी कहती होती सिख बन जाती है, फिर इसको होता है इस चीज को बस अब सही करके ही करना है। मेरे जहन में आ जाती है ना एक चीज कि नहीं अब नहीं, अब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरते पड़ते कर लेना है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ रास्ते भी बन जाते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, मैं हंसते गाते पहुंच ही जाती हूँ कर ही लेती हूँ। यानी हम उन लोगों में से हैं मेरी जिनके साथ अल्लाह की रहमत है, फैमिली की सपोर्ट है, बेशक कॉलीग्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या और हैं, उनकी भी हमारी मॉरल सपोर्ट है। तो जितने मर्जी हम मुश्किल सर्कमस्टांसिस में हो, इन सभी लोगों की, अल्लाह की मदद के बाद इन सभी लोगों की सपोर्ट से हम अपने क्राइसिस के अंदर से या अपने डार्क पैड से हमेशा निकले ही हैं। बिल्कुल। बेशक। तो मेरे पास एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है महरीन आपके लिए। आपने भी जिक्र किया डिस्कशन में कि आपको स्कॉलरशिप मिला था। वो लोगों को मेरे ख्याल लग रहा है कि शायद आपने जो जैसे नॉर्मल स्कॉलरशिप होता है उसके लिए अप्लाई किया था। आई एम अस्यूमिंग कि आपको जिस कंपनी में काम करी थी उनके थ्रू स्कॉलरशिप मिला था। नहीं, आपको नहीं 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 नहीं, मैं खुला मुकाबले के इम्तिहान में ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप जो ऑज़एड ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से वो जो न्यूज़पेपर में ऐड आता है, अब पता नहीं मुझे, इट्स बीन लाइक मैंने 2007 में अप्लाई किया था। अच्छा, उसका भी मैंने पहले, अच्छा जी बताइए। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड उसका भी मैंने 2006 में अप्लाई किया था, उन्होंने कोई नहीं लिफ्ट कराई। फिर 2007 में मैंने दोबारा किया था और वो लकीली दे वर ओनली 7 सिलेक्टेड। आई थिंक उनकी सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं, 7 या 8 थे, और उसमें भी कोटा सिस्टम लाइक मेल फीमेल और इस तरह का होता है। तो वो उसका फिर वो टेस्ट भी लेते हैं, आपका इंटरव्यू भी होता है, एंड देन यू गेट सिलेक्टेड, और वो फुली फंडेड थी मेरी। राइट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था वो भी यही था। ये जो मुझे जिन्होंने क्वेश्चन किया वो ये पूछना चाहते हैं, वो भी फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉलरशिप पे किसी डिग्री पे, लेकिन वो मास्टर्स डिग्री के लिए आना चाहते हैं बाहर। तो वो ये शायद प्रॉब्ली कि आप उनको शायद करंट जो अभी से चल रहा है वो तो आपका 2007-8 का था, प्रॉब्ली जो करंट पॉलिसीज होंगी, रूल्स होंगे, वो काफ़ी बदल चुके होंगे। एंड आई एम श्योर अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो आई एम श्योर कि अगर वो थोड़ा सा गूगल करके और खुद स्टडी करके इस चीज़ को देखें तो उनके लिए बेहतर होगा। तो महरीन, आपने जिक्र किया कि अभी आपने थोड़ी सी पहले जिक्र किया कि जो आपकी लाइफ वहाँ पे आपने नोटिस की है, उसमें कम्प्लेक्सिटी, सोसाइटल कम्प्लेक्सिटी का एलिमेंट बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया में। इंसान उतना ज़्यादा जज फील नहीं करता। उसका एज ए पर्सन आपके ऊपर, आपकी मेंटल ग्रोथ के ऊपर, आपके दिल के सुकून, आपकी जो मेंटल वेलबींग है उसके ऊपर क्या असर पड़ा? वो असर फाइजा, वो असर पढ़ा था यूनिवर्सिटी डेज में, तभी तो मैं वापस आने के लिए तड़पती तरसती थी कि मैंने वापस जाना है। क्योंकि मेरा, आपको तो पता ही होगा, मैं I've been a single mom for like 14 years. तो मैंने जो पीस मेंटल लाइक मेरी जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था ना, ये नहीं कि, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आज तक, और तब भी, यानी कि हमेशा मेरी अम्मी सबसे पहले, मेरे अब्बू और मेरे दोनों भाई, लाइक वो मेरे साथ ऐसे, जैसे होते ना, ऐसे खड़े रहे हमेशा, माशाल्लाह। लाइक दे हैव सपोर्टेड मी ऑलवेज। तो लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ आके सुकून मुझे मिला है ना, वापस जाके मैं बड़ी बेचैन रहती थी। लाइक ये मुझे था कि बस मैंने आने जिद पकड़ ली थी एक किस्म की मैंने। लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत सुकून है, नोबडी जजेस यू अनलेस एंड अनटिल आप किसी मेम से पंगा ना ले ले, वो और बात है। वो नहीं छोड़ती फिर। ओहो हो। There is no concept of, सबसे मजे की बात, there is no concept of staring at someone. ये जो पाकिस्तानी सबसे पहले आपको मिलते हैं वहाँ पे, सबसे बड़ा फर्क आपको लगता है कि वहाँ कोई स्टेयर ही नहीं कर रहा आपके ऊपर, या आपको अगर कोई स्टेयर कर रहा होगा तो वो जरूर साउथ एशियन बेल्ट का बंदा होगा। ये चीज आप बड़ी नोट करते हैं।
मुझे याद है कॉलेज जब यहाँ पे मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया था, तो मेरे साथ एक दो और मेरी पाकिस्तानी थी होती थी, तो मैं उनको कहती थी कितना मुझे अजीब सा अनवांटेड सा फील करते हैं, नोबडी लुक्स एट मी यार। हमें तो तैयार होके आते हैं कॉलेज में, आ रहे कोई भी नहीं देखता। कितनी वियर्ड सी बात है ना, कि कितनी स्ट्रेंज बात है जब आप पाकिस्तान में से बीइंग अ वुमेन आप आओ और आप वो तो वो बिल्कुल हैं, हमारे ये लिए तो कोई बिल्कुल हमें देखता ही नहीं। एक नया नया एक्सपीरियंस होता है कि नोबडी ये तो एनीबडी। ये तो कल्चरल ये तो शौक इतना है। बड़ा कल्चरल शॉक है, आप कहते हाँ हैं ये क्या बात है। बिल्कुल ऐसे। हाँ नहीं, यहाँ पे सोशली बेसिकली ये भी है कि लोग अपना अपना रहते हैं। देखो ना फायजा, सुबह अब हम इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे खत्म करते हैं। उसके बाद कितना का दिन है, आपने खाना भी बनाना है, सारे अपने काम भी करने हैं छोटे मोटे, आपने टीवी भी देखना है। उसके बाद कितना टाइम रह जाता है। वीकेंड पे आपको होता है कि अच्छा हमारा लाइक एज अ फैमिली, मेरा वीकेंड पे हम लोगों का ये होता है पार्क्स में चले जाए। आजकल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक तो हम लोगों का वैसे डेली भी इतना मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन डेली भी ना हम लोगों की कोशिश होती है कि 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप काम भी घर से कर रहे हो और फिर आप बाद में भी घर में बैठे हो। घर हमारा छोटा सा, तो वो एकदम से ना यू फील द लाइक इट्स टेकिंग ओवर। वैसे भी एक प्रेशर सा अब तो काफी बेहतर हो गया यहाँ पे, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा चीजें खुल गई है, लॉकडाउन बेहतर हो गया। लेकिन पहले इट वाज गेटिंग ऑन द हेड, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज वेरी ट्रिकी। जैसे अभी भी मुझे कोई ईमेल कर देगा ना, मुझे होगा है अभी जवाब दे दूं, इट्स वेरी इजी, लेकिन यू हैव टू बी वेरी फर्म अबाउट योर टाइमिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मेरीन, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी वहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ आना चाहते हैं या कोई जॉब के लिए वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस? अच्छा, जॉब का तो आई एम नॉट श्योर किस तरह। अब वो तो अपनी फील्ड में मेरी जो एक बेसिक सी स्पॉन्सर करे हाँ या कुछ ऐसे, वो मुश्किल हो जाता है। बट अगर कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, वुड यू रिकमेंड कि दिस इज द राइट टाइम, द इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड ऑल दैट? हाँ, अगर करना चाहते हैं ना तो अब इवन बिफोर द पेंडेमिक भी अगर मुझसे कोई पूछता था, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यू जस्ट कीप दिस इन माइंड, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। क्योंकि पता है क्यों फायजा, आपको पता है मैं आई वाज द मैनेजर व्हेन आई लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब, और उसी जॉब की वजह से आई गॉट माय पीआर। एब्सोल्युटली। जो मेरा इंस्पेक्शन का रोल था, लाइक जिस पे मुझे पीआर दी यहाँ की गवर्नमेंट ने, वहीं पे यहाँ पे भी स्कूल इंस्पेक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, राइट? सो बेसिकली तो आपको यही होता है ना कि हाँ, जब इन्होंने ही आपको बुलाया है, दे नीड पीपल लाइक अस। लेकिन जब मैंने यहाँ के डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था ना, सो दे टोल्ड मी, राइटफुली उनका भी पॉइंट सही था, उन्होंने कहा आप हमारे कॉन्टेक्स्ट में, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे तो हर चीज के रूल्स हैं, हर चीज, इवन के टीचर्स के लाइसेंसेस हैं, हर चीज के। इवन के बच्चे को बुखार है तो आपने 6 फॉर्म फिल करने हैं। एंड मुझे तो इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में इंस्पेक्शन करके आ रही हूँ। तो एनीवेज लाइक दे सेड नो, और वो फिर मैंने स्ट्रगल करके फिर देन आई स्टार्टेड एज एन एजुकेटर बेसिक स्टार्ट से, और अब फिर मैं अपनी आई एम हैप्पी कि मुझे दूसरी देन आई लैंडेड इन अ कैजुअल रोल। फिर कैजुअल रोल में मैंने काफी ज्यादा मेहनत दिखाई उन लोगों को, हार्ड वर्क मैं हूँ काफी, लेकिन देन वो रास्ता बनता गया और फाइनली आई आई गॉट दिस रोल। लेकिन हाँ, उसमें ये है कि अगर कोई चाह रहा है एज अ स्टूडेंट आना चाह रहा है या पीआर पे आना चाह रहा है, बस रिसर्च करें आप अपनी, क्योंकि हर एक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। मेरा जो बैकग्राउंड या मेरे सर्कमस्टेंसेस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और वो मैं कोई भी मेरे साथ नहीं मैच करेगा, हर एक के अपने अपने बिल्कुल होते हैं। अच्छी बात की है कि सबके एक्सपीरियंसेस फ़र्क है और सबका रूट भी फ़र्क है, इमिग्रेशन लेने का या स्टडी का भी। बहुत से लोगों को बहुत आराम से स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी पॉकेट से पे करके वीज़ाज लगवा के आना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट करना अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं है, आपकी फील्ड बिल्कुल यूनिक है। जैसे अभी के लेटेस्ट जो ट्रेंड मैंने देखा है
वो एआई और इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आराम से जो है इंफॉर्मेशन भी बहुत अवेलेबल है, और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स जितनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड जो जॉब्स हैं या इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ज़्यादा इजीली आप compete करके आराम से जा सकते हैं। तो महरीन, आपके एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ था, एक्चुअली लिंक्डइन पे हुआ था। वो उन्होंने साहब ने प्रॉब्ली आपकी विजिट की थी, जो आपकी प्रोफाइल है, और उन्होंने कहा कि आपकी जो अभी करंट जॉब है कितनी रिवॉर्डिंग है, हाउ रिवॉर्डिंग इज योर करंट जॉब देयर? अच्छा, रिवॉर्डिंग अब हर एक का, अब मॉनेटरी सेंस में वो नहीं, वो जॉब सेटिस्फेक्शन पूछ की रहे तरफ, हैं। नहीं वो जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब, द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू आर गिवन टू परफॉर्म एज पर योर एबिलिटीज एंड स्किल्स एंड नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड। तो डू यू थिंक, एक होता है ना जॉब सेटिस्फेक्शन का एंगल बहुत है, वो पैसों की बात नहीं कर रहे थे, वो पैसों की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन है आपको? हाँ नहीं, इस रोल में यस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि आपने जिक्र किया ना अभी, सेटिस्फेक्शन। ये आप यहाँ से मैनेजर के तौर पे गई थी, जब आपने वहां जाके अप्लाई करना शुरू किया तो सेम एक्सपर्टीज मोर और लेस, अब आपने भी वहां पे काम करना शुरू किया था, कुछ ना कुछ जो आपने यहाँ सीखा वो वहां पे अप्लाई होता होगा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हाँ। पे, डिफरेंट तरीके से, उनकी टर्म्स फर्क होंगी, उनका प्रोसेस सिस्टम फर्क होगा, लेकिन आपका ये जो हम्म एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, टीचिंग का भी और काम करने का भी, वो बिल्कुल इरेलीवेंट एकदम से नहीं हो गया होगा। हम्म। इसमें यही है कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस रोल, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत है। हम्म। क्योंकि करिकुलम पे पाकिस्तान में मैंने जो काम किया था ना, अब यहाँ का करिकुलम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देती है चीजें, बिल्कुल। ये स्किल्स हैं, ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, हम्म। और उनके अगेंस्ट हमने चेक करना होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं इन दी एंड हमारा कोर्स इस चीज को केटर कर रहा है कि नहीं। और वो काफी ज्यादा लाइक इट्स क्वाइट डिफरेंट, लेकिन बहुत मजे का है, जिसमें लर्न करने को बहुत है। सही। बाकी जो आप बता रहे हो ना स्किल्स की बात, जितने स्किल्स मैंने अपनी पुरानी जॉब्स में लिए थे, एक तो क्वालिफिकेशन तो होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो जॉब है ना, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन पे नहीं मिली। मैंने करिकुलम डेवलपमेंट में मास्टर्स या कोई डिग्री नहीं ली हुई, कोई सर्टिफिकेट नहीं किया हो, ये मेरे स्किल सेट पे मिली है। और वो भी जब मैंने इंटरव्यू में वैसे ही मैंने बताया कि हाँ मैंने करिकुलम का मुझे पता है। क्योंकि फायजा एक और मजे की बात है, पाकिस्तान में जो हम जार्गन या टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चीजों की यूज करते हैं ना, हम्म। जैसे क्लास कहेंगे, बच्चों का स्कूल की क्लासेस होती हैं, यहाँ पे ईयर होता है, हम्म। लाइक क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, यहाँ ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। तो ये एक एब्सोल्युटली। छोटी सी एग्जांपल है, नॉमेनक्लेचर लेकिन बहुत फर्क है, बिल्कुल। हाँ, वो जो हमारे करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स वहां पे होते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की जगह स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली मैंने इस पे रिसर्च बहुत की है। हैविंग सेड दैट, इस रोल में उन्होंने मुझे हायर तो कर लिया था, लेकिन फिर रिसर्च करें, और किसी चीज कोई आपको चीज मिल जाए ना, उसका देखें कि पुराना क्या काम हुआ है, हम्म। उस पे बेस करें। लाइक रिसर्च यही होती है ना, खाली गूगल रिसर्च नहीं करें, गेट सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ जर्नल्स, हाँ कोई बिल्कुल, उसकी आर्टिकल्स, इन कोई डेप्थ जो है वो एनालिसिस करें कि वो कितनी आपके लिए ट्रू है, क्योंकि वो जितनी भी रिसर्च अवेलेबल होती है वो भी किसी ना किसी ने अपने एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू की होती है। हाँ। तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपने खुद देखना है कि आपके कॉन्टेक्स्ट में वो कितना अप्लाई करती है। एक क्वेश्चन मुझे अभी हम्म लाइव रिसीव हुआ है यहाँ पे मेरी, वो पूछ रही है कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगी? उनके जो क्वेरी है, एक मिनट मैं चेक करूँ, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं और पाकिस्तान में अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं, द ओवरऑल प्लान दे शुड रफली वर्क ऑन फ्रॉम नाउ ऑन, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो किन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करें इन ऑर्डर टू सक्सीड इन गेटिंग अ गुड एडमिशन अब्रॉड? कि जो बच्चे अभी अंडर ग्रेड में हैं हम्म। या इन अंडर ग्रेड की अच्छा, स्टूडेंट जो ये तो बाहर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन से मैंडेटरी चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए वो उनके पास हो? आई थिंक एक तो आइल्स है, बहुत से कंट्रीज में आइल्स जो है एक तो वो उसका अच्छा स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ आई थिंक है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं अपना जो स्टडी फील्ड की स्टडी है उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज गूगल करना चाह रहे हैं, आप उनको भी देखें कि वो आपकी जो
GPAs हैं या आपका जो ट्रांसफर होना है, क्रेडिट ट्रांसफर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपका क्या ख्याल है? वो हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। एक तो जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स है ना, जैसे आइल्स हो गया, आपकी वो स्टेटमेंट मांगेंगे कि व्हाई यू वांट टू कम टू द यूनिवर्सिटी एंड ऑल, वो जो आपने एडमिशन लेने के लिए करनी है चीजें। बाकी क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, आप इफ फॉर एग्जांपल अगर आपने मोनेश में अप्लाई कर रहे हो, go and start searching for some groups जैसे LinkedIn में भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, and try to connect with someone फेसबुक पे who भी is होते हैं, already हाँ present, जो बिल्कुल। उस फील्ड में प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूं, मेरी जो क्योंकि मैंने 2008 10 साल पहले मैंने मास्टर्स डिग्री की थी, उस जमाने में कुछ और था बिल्कुल बिल्कुल। और अब कुछ और है। लेकिन इट्स बेटर कि आप उस रेलिवेंट फील्ड के बंदे को ढूंढ लो, स्टॉक ना करें, स्टॉकर्स ना डिफरेंट बने, प्रोफेसर्स जो लेकिन हैं वो जस्ट भी बड़ा गाइड करते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत गाइड करते हैं, डिफरेंट दे आर वेरी प्रोफेसर्स, हेल्पफुल। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल ऑफिसेज वो आपकी क्वेरीज को बड़ा अच्छा से जवाब देते हैं। बल्कि कई वेबसाइट्स जो मैंने देखी हैं उनके ऊपर तो FAQ में काफ़ी ज़्यादा डिटेल आंसर खुद से मौजूद होते हैं। उन्होंने दिए होते हैं। काफ़ी FAQ में उन्होंने डिटेल डाली होती ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, और काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है उनका इंफॉर्मेशन प्रोसेस। और फोरम्स भी बने हुए हैं। फाइजा, जब मैं अपना PR का अप्लाई कर रही थी ना, तो PR में भी आपको पता है ना, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, आपने फिल करनी है, आपको नहीं पता क्या करना है, क्या चीज कहाँ जानी है, कितना टाइमलाइन है, आपको वहां से क्या जवाब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो मुझे याद है मैंने गूगल पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट फॉरम था कोई ऑस्ट्रेलियंस का, जहाँ पे हम जैसे सारे देसी थे, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और फॉरेनर्स भी, और वो क्यूरीज डालते थे और मैंने भी अपनी डाली और वो मुझे फौरन जवाब मिलता था कि ये नहीं आपने ये लिखे, आप ये नहीं ये फॉर्म लगाएं। तो बिल्कुल यानी कि लोग, लाइक इफ यू वांट टू सर्च, देयर आर पीपल जो हेल्प करते हैं और बिल्कुल जेन्युइनली करते हैं। बिल्कुल। लाइक फेसबुक पे भी अब प्लेंटी वैसे ऑफ मैं इतनी फॉरम्स हैं वैसे, इंफॉर्मेशन के लिए हाँ, तो बहुत इतने प्लेंटी ऑफ ज्यादा फॉरम्स हैं। फॉरम्स हैं। हाँ, इंस्टा पे भी बने हुए हैं कुछ ग्रुप। नहीं भी देंगे, हाँ आपको कुछ नहीं भी लोग जवाब देंगे, लेकिन एक आधा बंदा दे भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरीन हमें। अच्छा, ये अच्छा, क्वेश्चन का जवाब ओहो, आप दे चुकी है कि जो वहाँ की लाइफ है वो किस तरह से अनकॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ये आप ऑलरेडी जवाब दे चुकी हैं। आप इसके बारे में हाँ अगर हाँ तो मेरी टाइम हमारे प्रोग्राम का जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपसे खत्म बात हो रहा करने के लिए बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक पार्टिंग मैसेज, है। जो आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इंजॉय किया है, अपनी स्ट्रगल्स के साथ, अपनी स्ट्रगल्स को सक्सेसेस में चेंज किया है, एक ऐसा पार्टिंग जो मैसेज है जो आप हमारे देखने वाले को, ऑडियंसेस को दे के, इस दुनिया में जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज लोग कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है वो ईजी हो। सबके साथ डार्क पैचेस हैं, जब सबके साथ हाईज हैं, सबके साथ लोज हैं। आपका लोग से आपका क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए? अच्छा, मेरा मैसेज तो यही है कि सबसे बड़ी बात कि अगर इफ देयर इज अ डार्क पैच, डोंट गिव अप। क्योंकि हम वन आप उस वक्त लग रहा होता है दुनिया खत्म है और बस मर जाओ और कोई मर जाए या आप नहीं, उस चीज के बाद जब आपकी खत्म होती है ना, यू विल सी के पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इट वाज नथिंग, लाइक हम सरवाइव कर ही सकते हैं। तो उस वक्त आपको लगता है मुश्किल, लेकिन डोंट गिव अप। सबसे अच्छी चीज है कोई हॉबी अपने लिए ढूंढ लें, बिल्कुल कोई भी छोटी मोटी हॉबी। बिल्कुल। लाइक हॉबी ये नहीं कि आप इंटरनेट पे लगे हुए हैं, यानी कोई और फिजिकल ये हैबिट पे वॉक करें, या कोई कोई फिजिकल हॉबी स्पोर्ट्स में या जिसमें पेंटिंग में या कुछ ऐसा। बिल्कुल। जिसमें थोड़ा सा ना आप अपने काम से निकलो। लाइक आई डू क्राफ्ट वर्क, छोटे मोटे, लाइक क्राफ्टिंग वगैरह करती हूँ मैं, कभी कभार दिल आता है, लेकिन आई लव डूइंग इट। सीजर से काम करना, कटर से काम करना, वो मेरे लिए एक इट्स किस्म वेरी का थेरेप्यूटिक। बहुत मुझे मजा आता है। ये क्रॉस स्टिच और इस किस्म की चीजें, जब ये पैंडेमिक का हुआ था ना, उन्होंने कहा लॉकडाउन सब कुछ खत्म, और मुझे वी वर नॉट, आई वाजंट श्योर कि मुझे रखेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें ईमेल्स आ गई थी HR से कि there will be people, they'll be saying bye to,
तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन जाके अपने लिए क्रॉस स्टिच ऑर्डर की जो रशिया में फंसी और रशिया से अभी तक नहीं आई। right. मैंने कहा That's a नहीं, good मैं thing. इस टाइम में बैठ के कुछ और करूंगी, आई Yes, नीड टू डू this समथिंग। is the only way to move forward. When you are given, there are blocks around you. This is the only way to remain positive. और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि नेगेटिविटी को बीट करने के लिए सिर्फ एक ही टूल है हमारे पास, पॉजिटिविटी। और हाँ, अपने आप को लाइक फाइंड पीपल। अब आप व्हेन यू लुक अराउंड, आप सबसे ज्यादा लाइक आई मिस माय पेरेंट्स अ लॉट। लाइक मेरी सबसे बड़ी विश ही यही है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के किसी तरीके से मैं उनके साथ रह सकूं। लेकिन व्हेन आई लुक बैक, मैं उनके साथ भी जब थी ना, तो मैं जब परेशानी का टाइम था, तो मैं कहती हूँ कि मैं कितनी लकी थी, मैं उनके साथ थी। तो दिस इज एन एडवाइस कि अगर परेशान भी है ना, लुक अराउंड यू, और जो आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स सबसे बड़े, उनको टाइम दें, उनको बहुत टाइम दें, क्योंकि वो वक्त गुजर गया, फिर नहीं आएगा। एब्सोल्युटली आपने सही बात की है कि मेक मेमोरीज विद ऑल द पीपल। जितनी भी आपकी सपोर्ट सिस्टम है फैमिली की फॉर्म में, ऑन फैमिली, मेक मेमोरीज विद देम। लाइफ इज वेरी टेम्पररी, कुछ पता नहीं किसी लम्हे क्या होना है। तो पॉजिटिविटी। तो आज का प्रोग्राम हम जो एंड कर रहे हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे गेस्ट की तरफ से आप सबको मैसेज ये है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से बीट करें। अल्लाह के साथ थोड़ी सी दोस्ती लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी के अच्छे में नहीं आ सकते तो किसी के बुरे में भी मत आइए। बुरे में बिल्कुल भी ना आए, बेशक। ये तो इतनी प्यारी फाइजा बात कहती है ना, लाइक अगर अपने कान नाक हाथ पांव खुले रखें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में होता है लाइक बुलिंग और लोग आपको बहुत तंग करते हैं, चुप रह के देखें, उनसे बच जाएं, बदले लेने पे ना उतरें। का जो जर्नी है वो पॉजिटिविटी के अंदर रूटेड है। जो लोग भी कहते हैं ना कि हम बहुत चेंज हो गए हैं, तो अगर वो अच्छे से बैठ के सोचें तो वो रियलाइज करेंगे कि उनकी अल्लाह ने उनको ताकत दी, सिखाया, समझाया कि नेगेटिविटी से को बीट करके जब वो पॉजिटिविटी में चले जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी उनके लिए आसान हो जाएगा, मेमोरीज बनाना उनके लिए आसान हो जाएगा, लोगों के का मददगार होना उनके लिए आसान हो जाएगा। चूंकि मैंने ये प्रोग्राम इशफाक साहब के जाविया से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था, तो मैं एक ही दुआ से इसका एंड करूंगी। अल्लाह हम सबको आसानियां दे, और ये उन्हीं की अल्फाज हैं। अल्लाह हम सबको आसानियां दे और हमें आसानियां बांटने की इजाज़त दे, तौफीक दे। थैंक यू मैरिंग सो मच। इंशाल्लाह हम कुछ और दिनों में किसी एक और अमेजिंग ह्यूमन बीइंग की स्टोरी के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू फाइजा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।